So hi everyone, I am Anirudh Goyal. I am a student at IIT Bombay in first year Mechanical Engineering Department. So JEE Main आ रहा है and I hope you guys are studying well and revision तुम कर रहे हो। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि JEE Main में इतना बड़ा सिलेबस है, हम रिवीजन करेंगे कैसे? इतना बड़ा 135 प्लस चैप्टर्स है, उनको 1 मंथ में या 2 मंथ्स में पूरा रिवाइज करना, इतनी सारी चीज़ें करनी है, तो वो करनी कैसे है ना। तो मैंने अपने चैनल पे पोल किया था, उसमें मैंने रिवीजन शेड्यूल से रिलेटेड और मॉक टेस्ट पेपर्स और ऐसी स्ट्रैटेजी जो वीडियो रिवीजन स्ट्रैटेजी वीडियो उसके बारे में पूछा था, तो पीपल रिस्पॉन्डेड वेरी वेल एंड सबको मतलब ऐसा लगा कि चाहिए ऐसी वीडियो की नीड है। सो हेयर इट इज। प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि बिकॉज सिलेबस इतना बड़ा है, लोगों को समझ नहीं आता रिविजन करना कैसे है। बेसिकली मतलब इतना पहले चैप्टर्स को अरेंज करना कि प्रायोरिटी वाइज कि ना कैसे करना है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ लिया तो उसके बाद में भी उसमें इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी थ्योरी, इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी बुक्स वगैरह, मतलब PYQs, तो वो चीज़ें करनी कैसे वो चीज़ इसमें बताऊँगा। ठीक है, तो फर्स्टली आई वुड से कि पहले रिविजन की जो मैंने शेड्यूल बनाया है उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, बिकॉज मैंने वो शेड्यूल बना लिया है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। एंड तो पहले उसका ओवरव्यू दे देता हूँ एंड उसके बाद में बताऊँगा कि पर्टिकुलर सिलेबस कैसे कवर करना है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे कवर करना है। सो कम ऑन माई स्क्रीन, आई शो देयर। Hi, this was the revision schedule I was talking about. So here what I have done is I have partitioned the complete syllabus, that is 135 plus chapters, I guess, if I remember correct. There are these many chapters, so yeah, it seems difficult to cover complete syllabus or to revise complete syllabus before time in almost 1.5 months, because this is vast. Obviously, it's complete 2 years syllabus, but yeah, it's not as difficult as it seems. It can be achieved, and people achieve this. Achieve I mean, by achieve I mean people revise complete syllabus on time. So that's not very tedious job. So yeah, I'll explain how the revision schedule works and how I'll give a brief overview of that, and after that I'll tell you about how to revise these chapters particularly, right? Because there are a lot of things to do in a particular chapter even. So how to deal with that? So here first I will say that I have partition complete syllabus into 8 divisions, right? With each division containing some chapters of a particular subject. Like for first division, maths में है equations, inequations, and the basic maths and matrices and determinants, right? And like there's only in chemistry में mole reactions, stoichiometry. Yeah, but these things, suppose for chemistry, moles and stoichiometry are not very difficult, but people ignore this and might suffer from a loss, because these things might uh, be difficult for someone. And so मतलब basically हर topic को मैंने इसमें जगह दी है because each topic can be important at any time, because we can't predict कि कौन से topic से ज़्यादा questions आएंगे या कुछ भी. तो you have to be uh, very fine with each one of them. So first division में इतने topics हैं, and I have given a date for the particular that division, right? For like the revision schedule starts from 23rd Jan, this coming Monday, and it lasts up to 27th Jan. So what you have to do in these 4 days is cover complete these many topics of these of the particular division, right? So how you will cover those I will tell, but before that, how the revision schedule works. So here it is. Okay, so basically each division is divided into 4 days, and you have to go through the complete topic of that particular division. And so how this is, so this is how the revision schedule goes. And right, so basically you will be able to cover complete syllabus in a decent time. In I guess it's only 1 month long I have designed it, and almostly I have covered, I guess, all the chapters which are there in the syllabus of JEE Main particularly, because this is only JEE Main oriented syllabus, not for JEE Advanced at all. And that is the time when you have to focus on JEE Main only, not think much about JEE Advanced, because well, basically JEE Advanced is a superset of JEE Main only. But yeah, there might be some topics. And okay, so anyways, this is the brief schedule. And so I guess if you will follow this religiously, because it took a lot of efforts from me, because I just want to clarify one thing. If you are following this, then follow it religiously, otherwise don't follow, because it is not a joke. Because JEE Main is obviously not a joke. It is an important exam to qualify, and I hope you will
understand this and will abide and by the schedule strictly, because if you are following, then follow it very religiously, very blindly, because I have followed the same schedule and I know that it works very well, and it worked very well for me in fact. And there might be some topics which I might have forgot to include, so please forgive me for that, and you can cover that on your own obviously. So basically, I have divided complete syllabus into 8 divisions with 4 days each, and I'll tell you now how to cover the particular division and what to do. And there might be some errors in the schedule, because like there might be difference in units what is given for the particular chapter. There might be some errors here, and just to ignore them. And yeah, I guess that's enough. This is a brief overview for this particular revision schedule, and this is, you can read this afterwards. I will post it in the drive link. Okay, so if you are following the schedule, please give your best to follow, because it is very strictly, if you should follow this is not a joke, I am saying again. If you're following, please follow it very religiously. And if you want any discussions with me, because a lot of people at this stage need those, so you can join the Telegram group or can message me on Insta too. The links are given in about. Okay, cool. So that's it about the revision schedule, and now I'll give you how to revise a complete syllabus, because I have given the dates and how the syllabus schedule works, but you must know how to, because there are a lot of things to cover in a particular divisions, to in a particular chapter, to questions, theory, books, whatever, PYQs, etc. So I'll uh, give a voice to that too, and I guess, and I hope that you people will follow this very nicely and will try to get best output of this. And that's it about the schedule, and now we'll move on to how the schedule, how we have to cover. Okay, so that's it about this. Thank you. So after giving brief overview of that revision schedule, I am gonna tell how एक पर्टिकुलर डिवीजन को कवर करना है, ठीक है, क्योंकि कैसे टॉपिक को उठाना है, कैसे उसके नोट्स करने हैं, कैसे क्या करना है वो बताता हूँ। तो लाइक तुमने 23rd से जो 27th वाला शायद स्लॉट है, जो मैंने डिवीजन बनाया है, उसमें कोई भी टॉपिक उठाया सपोज टू, ठीक है, केमिस्ट्री में सपोज मूल कंसेप्ट वाला जो है वो उठाया, तो उसमें तुम्हें बेसिकली क्या करना है, पहले जो भी तुम्हारे क्लास नोट्स हैं, कोई नोट्स तुम्हारे होंगे ऑब्वियसली किसी टॉपिक के, है ना, तो उनको देखना है। तो उसमें तो क्या करोगे, पॉइंट टू पॉइंट पूरे नोट्स को अच्छे से कवर करोगे, ठीक है। तो अब तुम्हें उसमें समझ में आएगा कि क्या चीज़ की पॉइंट है या नहीं है। तो तुमको ट्राई करना है कि मतलब ट्राई क्या करना है, इट्स मतलब तुमसे एक्सपेक्टेड है कि वो जो की पॉइंट है तुम उसको प्रिजर्व कर लोगे एक अच्छी जगह, ताकि तुम उसको बाद में कभी विजिट कर सको, ठीक है। तो ये तो हुआ क्लास नोट्स कैसे करने हैं, मतलब क्लास नोट्स पढ़ने हैं और उनको मतलब वो तो क्लास नोट्स कैसे पढ़ते हैं वो तो आता ही है ना, ठीक है। तो ये क्लास नोट्स पढ़ने का तरीका हुआ। उसके बाद ट्राई करो कि जब क्लास नोट्स एक पर्टिकुलर टॉपिक के पढ़ लिए, उसके बाद उनको बंद कर दो और उसको मतलब पूरा रिकॉल करो कि क्या 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 उसके अंदर था, ऐसे ऐसे फॉर्मूलेस थे, ऐसे कंसेप्ट अप्लाई हो रहे थे, ऐसे कुछ चीज़ें जो थी उनको ट्राई करो वापस अपने माइंड में फ्लैश कराने का, ताकि ये चीज़ें फिट हो जाएगी फिर, ऐसा है ना, ठीक है। कोई डेरिवेशन है तो उसको कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं ये माइंड में चीज़ें वर्क कराने की ट्राई करो, ठीक है। जो क्लास नोट्स ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे मतलब धीरे धीरे जैसे 2-3 टॉपिक्स कर लिए कवर एक साथ, है ना, फिर कुछ क्वेश्चंस जो हैं अब जेई में आने वाला है, तो अब ये टाइम नहीं कि कोई बुक पढ़ोगे ज़्यादा, है ना, मतलब बुक में से क्वेश्चंस कर रहे हैं हालांकि एक्स्ट्रा, तो अब ट्राई करो कि अपने को थोड़ा कन्वर्ट करने की, मतलब ज़्यादा जो करे हुए क्वेश्चन है वो भी देखो अच्छे से, उन्हीं को उन पर अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करो, और ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन हो सकते हैं, तो तुम कोचिंग में हो तो कोचिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर अगर कोचिंग नहीं है कोई, तुम जहाँ से अब तक क्वेश्चन कर रहे थे उन क्वेश्चंस को अच्छे से और देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक हुआ कि जो तुम्हारे करे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें, उसके बाद अब तुम्हारे पास जैसे स्लॉट 4 दिन का है, तो अब तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम पहले थ्योरी कवर कर लो सारी, उसके बाद जो क्वेश्चंस तुमने देखे हुए या तुम मार्क कर रखे अच्छे क्वेश्चंस वो कर लो। उसके बाद टाइम बचेगा ऑब्वियसली 4 दिन में, अब है ना, तो उसके बाद जो टाइम बचा 4 दिन उनमें तुम PYQs कर सकते हो, बट अब PYQs में तो सारे टॉपिक होंगे, तो तुम ट्राई करो कि जो तुमने नहीं पढ़ा उसको या तो छोड़ दो या फिर आता तो होगा एक तो कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिवीजन कर रहे हो उसके सॉफ्ट क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। पर बेसिकली यहाँ पे एक गड़बड़ी होती है कि एक डिवीजन में भी इतना सारा मैंने कंटेंट दे दिया है, 4 दिन में भी वो भी इतना है तो 4 दिन में पूरा नहीं होगा, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो तुम्हें ट्राई करना है कि तुम थ्योरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो इस टाइम पे, क्योंकि अगर तुमने जैसे
4 दिन में 3 दिन थ्योरी कर ली, 1 दिन क्वेश्चन दे दिया पूरा सपोज, है ना, राउंड में, तो हो सकता है कि फिर भी थोड़ी थ्योरी तुम्हारी विजिट करना जैसे रह जाए नोट्स में या रिविजन करते टाइम, तो वो उसका फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो तुम करते ही रहोगे बाद में, बट थ्योरी बाद में वापस आके देखना उस पर्टिकुलर डिवीजन में इट इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब हो सकता है वो मिस ही हो जाए फिर, और वही चीज़ एग्जाम में आ गई। तो ट्राई करो कि पहले सारे नोट्स को अच्छे से करो, ठीक है। मैंने मतलब ऐसे ही किया था, मेरे भले वैसे हमको जो शॉर्ट्स मिलते थे उसमें मतलब पूरी में थ्योरी पहले सबसे ज़्यादा करता था, भले क्वेश्चन थोड़े कम हो जाए, पर ताकि थ्योरी सारी आनी चाहिए, पता होना चाहिए चीज़ें हैं क्या, चीज़ें पता ही नहीं होगी, अगर चीज़ें पता ही नहीं होगी कि है क्या, तो अपन क्वेश्चन तो कर नहीं सकते ना। तो बेसिकली थ्योरी आनी चाहिए। तो मैं तो मतलब ऐसा एडवाइस करूँगा कि पहले थ्योरी जितनी भी डिवीजन में है पहले उसको कवर कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करते रहो, या फिर थ्योरी क्वेश्चन। तो बेसिकली इस तरह से सेट करना है ताकि थ्योरी तो जितनी है वो पूरी कवर कर ही लो नोट्स से, वो मत मिस होने देना बिल्कुल। क्योंकि अब जैसे ऐसा हो सकता है स्लॉट 1 में तुमने कुछ 1-2 टॉपिक छोड़ दिए, वो बोला कि बाद में देख लूँगा, फिर स्लॉट 2 में आए उसमें और ज़्यादा था तो फिर वो और छूटते रहे, तो ऐसे छूटते छूटते फिर बहुत सारा ऐसा पूरा जो 1 महीने का मैंने शेड्यूल दिया है वो पूरा होने के बाद भी तुम्हारे टॉपिक्स रह जाएंगे कवर करने से, वापस देखने से, तो वो मतलब वो गलत हो जाएगा ना यार। तो जो शेड्यूल मिला है उसको अच्छे से फॉलो करना है, तो उसके लिए अपने को ट्राई करना है कि कोई चीज़ें बैकलॉग नहीं रहे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो मैंने बता दिया, मतलब आई गेस कैसे रिवीजन करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, वो हो गया। और आई विल सजेस्ट कि इस टाइम पे ज़्यादा बुक्स वगैरह मत देखना, क्योंकि बुक्स में अब ज़्यादा ऐसा कुछ नया तो क्या ही पढ़ोगे, अगर मतलब पढ़िए अब जितना पढ़ना है, नहीं पढ़ा तो अब रहने दो भले, मतलब थोड़ा पढ़ सकते हो बट आई वोंट सजेस्ट, ठीक है। अब ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान दो जितना करा, क्योंकि अब 1-1.5 महीना ही है, तो अब जो 2 साल पहले पढ़ती चीज़ें वो चीज़ें अब अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज मतलब ठीक है ना, वो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कैसे करना है। अब हो सकता है कोई करना चाहे तो कर सकता है, मतलब ठीक है, ओके। सो ये मैंने बता दिया लेक्चर कैसे कवर करने, सारे नोट्स कैसे कवर करने, क्वेश्चंस कैसे देखने, एंड PYQs कैसे देखने, ओके। मस्त प्लान है। तो ये तो आपका पूरे 1 महीने का पूरा स्केड्यूल मैंने दे दिया। उसके बाद भी आई हैव गिवन 10 मॉक टेस्ट पेपर्स, सो यू हैव टू अटेम्प्ट दोज ऑल्सो, बिकॉज मतलब मैंने पोल किया है तो लोगों ने बोला है कि चाहिए हमको, तो तभी मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज आई वोंट हैव गिवन, बिकॉज इट टुक माई एनर्जी टू सेट दोज पेपर्स, बिकॉज मैं वो ऐसा नहीं कि पेपर मैंने बनाए हैं, बट आई हैड टू recollect them and do some changes in editing and all those things, so it took my time too. So basically मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अगर कर रहे हो तो प्लीज़ चीज़ों को रिलीजियसली करना, कोई ऐसे मजाक में मत लेना, बिकॉज ये चीज़ें कोई टाइम पास नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जेई मेन है, जेई एडवांस है, जो भी है, बट इट टुक समवन्स एफर्ट, ठीक है। तो ट्राई करो कि उनको रिस्पेक्ट दो, ड्यू रिस्पेक्ट, और उनको अच्छे से फॉलो करने की ट्राई करो, और ये सोचो कि फॉलो करने से तुम्हारा ही फ़ायदा है यार, तो तुम अपने आप को जितना स्ट्रेच कर सकते हो इस टाइम पे कर डालो, क्योंकि ये टाइम नहीं आएगा वापस, बात बता दे रहा हूँ मैं, बिकॉज मुझे आज भी याद है कि जो मतलब वो जो टाइम था वो कितना सही टाइम था यार, उस समय इतनी अच्छे से मेहनत कर ली। तो आज अभी बहुत लोग मुझे ये चीज़ बोलते हैं कि यार हम तो जेई के दिन भूलना चाहते हैं यार, इतने ख़राब टाइम था वो, बट मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि मेरे को वो चीज़ वापस अच्छा लगता है वापस रिकॉल करना वो टाइम, क्योंकि दैट टाइम बिकॉज आई वर्क वेरी हार्ड एंड ठीक है, तो वो टाइम काफ़ी सही रहता है, और बाद में चीज़ अच्छी लगती है कि अपन अभी कुछ सेक्रीफाइसेस करते हैं तो उसको बाद में फील करना और अच्छा है, तो मैं फील कर सकता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। अब तुम में बहुत लोग होंगे जो कि ऐसे अच्छा कर रहे होंगे, कुछ लोग परेशान होते हैं ऑब्वियसली, ऐसा भी होगा कि अब मैं बताऊँ यहाँ पर ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि तुम रिविजन करने बैठ रहे हो, बट तुम ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हो तो तुम्हें टॉपिक ही समझ नहीं आता, सपोज समझ नहीं आ रहा, तो पॉसिबल है कि तुम परेशान हो जाओगे कि यार उसमें टाइम चला गया समझने में, तो समझने का टाइम तो पहले था, अब रिविजन करने का टाइम है, ठीक है। तो ये ट्राई करो कि जो पहले समझ रखा है उसको अच्छे से कर डालो, क्योंकि अब मैं ज़्यादा समझ रहे हो वो समझ सकते हो नई चीज़ें भी, बट वो थोड़ा ट्राई करो कि जो अच्छा पहले स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। बिकॉज हमारे टाइम मुझे याद है ऐसा बहुत के साथ हुआ था कि उनका पूरा रिविजन का टाइम समझने में चला गया था, बिकॉज उन्हें पहले नहीं समझा था सही से, पहले क्लासेस में ध्यान नहीं दिया। तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा है तो मतलब कोई पॉसिबल है हो तुम्हारे साथ भी, पर ट्राई करो कि रिवीजन को एटलीस्ट अच्छे से कर लो। और बेसिकली ये बोलूँगा कि अभी जेईई मेन का फर्स्ट अटैम्प्ट ही है, तो ज़्यादा ऐसे परेशान होने का तो नहीं है, बट ठीक है ट्राई कर सकते हो कि इसमें अपना बेस्ट दे दो, क्योंकि आगे बढ़कर टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो सब लोग ही पढ़ेंगे, तो चीज़ें टफ ही होनी है, मैं बता रहा हूँ। टफ इन सेंस ज़्यादा लोग आएंगे ना आगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, बट दैट डजंट मेक सेंस, है ना, मतलब कंपटीशन वगैरह सब बकवास है।
अगर किसी को आता है तो उसको आता है, वो अचीव करेगा वो चीज़ें जो करनी है, ठीक है। कंपटीशन जैसी जो बातें इनमें ज़्यादा सोचने का भी नहीं है। एंड बाकी तो मतलब आई गेस इट्स इनफ, मतलब मैंने बता दिया रिवीजन कैसे करना है, एंड दैट्स इनफ फॉर रिवीजन वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो। एंड आई होप कि जो तुम लोग फॉलो करोगे, प्लीज़ यार, इट्स अ रिक्वेस्ट कि तुम उसको रिलीजियसली फॉलो करो, बिकॉज इट टुक अ लॉट फ्रॉम माई साइड टू डू दिस थिंग फॉर यू गाइस, बिकॉज मेरे पास भी बहुत काम है, मतलब मेरे को कोई मज़ा नहीं आता है ऐसा टाइम पास करने में, टाइम पास नहीं है ये, ठीक है। किसी की हेल्प है जो भी है, ठीक है, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट ठीक है, आई गेस दैट्स इनफ। एंड सो आई होप कि तुम लोग अच्छा करोगे। एंड चैनल का प्रमोशन क्या ही करूँ, तुम लोग अच्छे बच्चे कर दोगे सब्सक्राइब वगैरह तो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। बट एनीवेज मैं बोल चुका कि मेरा मोटिव कोई सब्सक्रिप्शंस लेना है या फिर चैनल को ज़्यादा बड़ा करना नहीं, मेरा मोटिव किसी जूनियर की हेल्प करना है, दैट्स इट। सो ओके, सो बाय।